بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 50 پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں بھی ہم صفت ادامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة رضی اللہ تعالی عنہا علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت علی بن حجر نے بیان کی، ان کے پاس یہ روایت اسماعیل بن جعفر نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے عبداللہ بن عبد الرحمن بن معمر انصاری ابو طوالہ نے بیان کی، اور یہ ابو طوالہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ دیکھیے، اس حدیث کی تشریح تو ہم پچھلی حدیث میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ کا مقصد ان روایات کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھا، اس لیے مختلف روایات سے اس کے نوش فرمانے کا معمول معلوم ہوتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توزأ من ثور عقيق ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوزأ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت قتیبہ بن سعید نے بیان کی، ان کے پاس خبر دی عبد العزیز بن محمد نے سہیل بن ابی صالح کے واسطے سے۔ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے یہ روایت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پنیر کا ٹکڑا نوش فرما کر وضو فرماتے دیکھا، اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ بکری کا شانہ نوش فرمایا اور وضو نہیں فرمایا۔ ثور، اثوار، ثیار، پنیر کا ٹکڑا، پنیر کا بڑا ٹکڑا، عقیق، پنیر، پنیر کا ٹکڑا۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کے ٹکڑے سے جس زمانے میں وضو فرمایا ہو وہ زمانہ آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو ٹوٹ جانے کا زمانہ ہو، یا کسی اور وجہ سے وضو بر وضو کا ارادہ فرمایا ہو، یعنی وضو کے اوپر وضو کا ارادہ فرمایا ہو، یا پہلا وضو کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا ہو۔ لیکن یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز بیان سے یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی پکی ہوئی چیزوں سے وضو کرتے تھے، اسی لیے پنیر کے نوش فرمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بعد میں پھر یہ حکم باقی نہیں رہا، اس لیے بکری کا گوشت نوش فرما کر وضو نہیں کیا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله تعالى عنها بتمر وسويق
इमाम तिरमिजी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत इब्न अबी उमर ने बयान की। वो फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत सुफियान बिन उयैना ने वाइल बिन दाऊद के वास्ते से और उन्होंने अपने बेटे से बयान की जिनका नाम बकर बिन वाइल था। वो ज़ुहरी से और वो सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वलीमा खजूर और सत्तू से फरमाया था। अव्वलम फ़िल माजी वाहिद मुज़क्कर बाब इफ़आल वलीमा करना, वलीमे का खाना खिलाना, सवीक़ुन अस्वीक़तुन सत्तू और इसके हम माना शराब के भी आते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। मुहर्रम 7 हिजरी में जंग खैबर में बांदी बनकर आई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद फरमाकर निकाह कर लिया और फिर सफ़र ही में इनका वलीमा हुआ। इनका वलीमा किस चीज़ से हुआ, इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ कहते हैं कि हैस जो एक किस्म का हलवा है इसका वलीमा हुआ और बाज़ ने कहा है कि पनीर से हुआ। और चूंकि ये सफ़र का मौका था इसलिए नाश्ते वगैरह में जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास था वो सब का सब वलीमे में शरीक कर दिया गया। वलीमे के शरई हुक्म के बारे में बताया गया कि वलीमा सुन्नत है और खलवत सहिया के बाद अफजल है और वलीमे की दावत कबूल करना ये भी सुन्नत है। और यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि शरीयत ने वलीमे में कोई ख़ास मिक़दार या मेयार मुकर्रर नहीं किया। हर इंसान की अपनी हैसियत पर मुनहसिर है। अगर कोई गोश्त की ताकत नहीं रखता तो फिर आम खाने से ही वलीमा कर सकता है, जैसा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वलीमा हुआ। और वलीमे की दावत को आम होना चाहिए जिसमें बग़ैर इम्तियाज़ के अमीर गरीब हर तबके के लोगों को बुलाया जाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सब खानों में बुरा वलीमे का वो खाना है जिसमें मालदार लोगों को तो बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। मौलाना अशरफ अली थानवी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि वलीमा करो अगरचे एक ही बकरी हो। मतलब ये है कि गोया थोड़ा ही सामान हो मगर करना चाहिए। बेहतर ये है खलवत सहिया के बाद वलीमा किया जाए, मगर बहुत से उलमाए किराम ने निकाह के बाद भी जायज़ फरमाया है और वलीमा मुस्तहब है। अगली हदीस की इबारत देखिए। वभी क़ाल हद्दसना अल-हुसैन इब्न मुहम्मद अल-बसरी क़ाल हद्दसना अल-फुज़ैल इब्न सुलैमान क़ाल हद्दसनी फ़ाइद मौला उबैदिल्लाह इब्न अली इब्न अबी राफ़िअ मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न अली अन जद्दतिही सलमा अन अल-हसन इब्न अली इब्न अब्बास व इब्न जअफ़र अतौहा फ़क़ालू लहा इस्नई लना तआमन मिम्मा काना युजिबु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युहसिनु अक्लहु फ़क़ालत या बुनय्या ला तश्तहीहि अल-यौम क़ाल बला अस्नईही लना क़ाल फ़क़ामत फ़अख़ज़त शैअन मिन अश-शईरी फ़तहनतहु थुम्मा जअलतहु फ़ी क़िदरिन वस्क़ब्बत अलैहि शैअन मिन ज़ैतिन वदक्कतिल फुलफुला वत्तवाबिला फ़क़र्रबतहु इलैहिम फ़क़ालत हाज़ा मिम्मा काना युजिबुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युहसिनु अक्लहु। इमाम तिरमिज़ी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत हुसैन बिन मोहम्मद बसरी ने बयान की। वो फरमाते हैं कि हमें इसे फ़ुज़ैल बिन सुलैमान ने बयान किया। वो फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत फ़ाइद ने बयान की जो कि उबैदुल्लाह बिन अली बिन अबी राफ़े के आज़ाद गर्दा ग़ुलाम थे और ख़ुद अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद गर्दा ग़ुलाम थे। वो फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत उबैदुल्लाह बिन अली ने अपनी दादी सलमा रज़ी
अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बयान की। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इमाम हसन बिन अली और अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और ये फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खाना पसंद था और इसको रग़बत से नोश फरमाते थे वो हमें पकाकर खिलाएं। तो सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, प्यारे बच्चों, अब वो खाना पसंद नहीं आएगा, वो तंगी ही में पसंद होता था। उन्होंने फरमाया कि नहीं, ज़रूर पसंद आएगा। वो उठी और थोड़े जौ लेकर इनको पीसा, फिर हांडी में डाले और इस पर ज़रा सा जैतून का तेल डाला और कुछ मिर्चें और ज़ीरा वगैरह मसाला पीस कर डाला और पका कर ला कर रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। अन्नल हसन इब्न अली इब्न अब्बास वब्न जाफरिन, हसन बिन अली, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तीनों सगार सहाबा में से हैं और तीनों हजरात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात, अतवार और आमाल, गर्ज के अखलाक और खसाइल जानने और सीखने और इन पर अमल करने का बेहद शौक था। तीनों सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए कि वो बुज़ुर्ग शख्सियत थी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा और बावर्चन होने का शर्फ हासिल था। तो इसी मुनासबत से इन हजरात ने बहुत प्यारा सवाल किया जिसके एक एक लफ्ज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत, इश्क और इश्तियाक की खुशबू आती है। उन्होंने अर्ज़ किया, फ़क़ालू, यानी उनमें से एक ने अर्ज़ किया या सब ने मिलकर किया, फ़क़ालू लहा इस्नई लना तआमन मिम्मा काना युजिबु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे लिए वो खाना तैयार करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। व युहसिनु अकलहु, युहसिनु बाब इफ़आल, अच्छा करना, अच्छा समझना, यानी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़बत से खाते थे वो हमारे लिए बनाइए। आगे हज़रत सलमा फरमाती हैं, फ़क़ालत या बुनैया, ये सीग़ा तस्ग़ीर है शफ़क़त के लिए और इससे मकसूद या तो निदा इनमें से हर एक को थी या जो इनमें से पूछने वाला था इसको थी। फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, ला तश्तहीहिल यौमा, यानी वो खाना तो तंगी और उसरत के वक्त का खाना था, अब तो आम में यानी खाने में वुसअत है और आसानी है। ऐसा ना हो कि तुम्हें इस खाने की तरफ तवज्जो और रग़बत ही ना हो। तो देखिए यहाँ पर हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खिताब में ला तश्तहीही वाहिद को मुखातिब किया, हालांकि मुखातब जमात थी। तो उन्होंने वाहिद का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया कि या तो इसलिए कि इनमें से बड़े यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब किया और या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबको बवजह इनके मकसद के एक होने एक फर्द करार देकर खिताब किया। और ये भी मुमकिन है कि जिसने इस्नाई का खिताब हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुखातब भी वही एक ही हो, अगरचे मुराद सब थे। फिर उन्होंने इसरार किया कि नहीं, हमें बना दीजिए। तो उन्होंने थोड़ा सा आटा, जौ का आटा गूंदा और उसको हंडिया में डाला, फिर जैतून का तेल और स्याह मिर्च और ज़ीरा और मसाला पीसकर इसमें डाल दिया। तश्तही फिल मुजारे बाब इफ्तिआल, ख्वाहिश करना, चाहना, इसना फिल अमर हाजिर, करना, तैयार करना। कहानत गेहूँ पीसना, गंदुम का आटा बनाना। क़ब्बत पानी बहाना, उंडेलना। दक्कत बारीक करना, कूटना, पीसना। अल-फुलफुलु फुलफुला की जमा है, बमाना मिर्च। फल-फलत तआमा खाने में मिर्च डालना। तो जब खाना पका लिया गया तो तीनों के सामने रखा और फरमाया,
वहाज़ा मिम्मा काना युजिबु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युहसिनु अकलहु, कि ये वो खाना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा और इसके खाने को पसंद फरमाते थे। तो यहाँ पर अल्लामा बैजूरी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे मालूम किया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को आसानी से मुयस्सर शुदा चीज़ों के साथ लजीज बनाने को पसंद फरमाते थे, और ये ऐसा करना ज़ुहद और तकवा के खिलाफ नहीं है। आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।